পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গৰজি উঠিল আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত। এইবাৰ মোহন ভাগৱতে ৰাৱণৰ উদাহৰণেৰে পাকিস্তানক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। পুনৰবাৰ কৈছো, ৰাৱণৰ উদাহৰণেৰে পাকিস্তানক শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰএছএছ চিফ মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব, অহিংসা নহয়, হিংসাৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে। যেহেতু শত্ৰুৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যি জঘন্য কাণ্ড কৰিলে, ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যি ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব আমি সকলোৱে, আৰু সেইবাবে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। ৰাৱণৰ উদাহৰণেৰে পাকিস্তানক শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মোহন ভাগৱতে। পাকিস্তানক শেষ সকিয়নি মোহন ভাগৱতৰ। অহিংসাৰে দমন কৰিব নোৱাৰা দুষ্টক শিক্ষা দিয়াটো আমাৰ ধৰ্ম। ৰামে ৰাৱণৰ বধ কৰিছিল ৰাৱণৰ কল্যাণৰ কাৰণে। শত্ৰুক শিক্ষা দিবলৈ হিংসাৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব, এনেধৰণে উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ। দুষ্ট বুদ্ধিৰে উপদ্ৰৱ কৰা সকলক আমি শেষ কৰিবই লাগিব। সৰ্বগুণ সম্পন্ন ৰাৱণকো ভগৱান ৰামে সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে শেষ কৰিব লগা হৈছিল। ৰাৱণৰ সংহাৰ কৰাটো হিংসা নহয়, অহিংসাৰে এটা অংশ আছিল, এনেধৰণে মন্তব্য ৰাখিছে মোহন ভাগৱতে। আততায়ী গুণ্ডা বাহিনীক শিক্ষা দিয়াটোৱে আমাৰ ধৰ্ম, আমাৰ দায়িত্ব আৰু আমাৰ কৰ্তব্য। দুষ্টক সংহাৰ কৰাটো এজন ৰজাৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম। দুষ্টক সংহাৰ কৰাটো, দমন কৰাটো এজন ৰজাৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম। আমি কেতিয়াও আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰক ক্ষতি কৰা নাছিলো, ভাৰতে কেতিয়াও চুবুৰীয়া দেশক ক্ষতি কৰা নাছিল। যদিহে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই আখৰিক কাণ্ড কৰে, আমি উচিত শিক্ষা দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য। এতিয়া দেশৰ জনতাক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰজা আগবাঢ়ি আহিবই লাগিব। দেশৰ জনতাক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰজা আগবাঢ়ি আহিবই লাগিব। গীতাতো লিখা আছে, দুষ্টক দমন কৰিবলৈ কৃষ্ণই অৰ্জুনক হাতত অস্ত্ৰ ল'বলৈ কৈছিল। গীতা, ৰাম, ৰাৱণৰ উদাহৰণ দি শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ পাকিস্তানক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মোহন ভাগৱতে। পুনৰবাৰ কৈছো যে গীতা, মহাভাৰত, ৰাৱণ, ৰাম সকলোৰে উদাহৰণ দি উদাত্ত ভাষণ দিছে আৰএছএছ চিফ মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, ৰজাই এতিয়া একশ্যন ল'বই লাগিব। ৰজাই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব। শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক উচিত শিক্ষা দিবই লাগিব, হিংসাৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব, এনেধৰণে উদাত্ত ভাষণ দিছে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সৰ্বগুণ সম্পন্ন ৰাৱণকো ভগৱান ৰামে সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে শেষ কৰিব লগা হৈছিল। ৰাৱণৰ সংহাৰ কৰাটো হিংসা নহয়, অহিংসাৰে এটা অংশ আছিল। আমি কেতিয়াও চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ বেয়াটো নিবিচাৰিছিলো, আমি কেতিয়াও চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ অনিষ্ট কৰা নাই। দুষ্টক সংহাৰ কৰাটো এজন ৰজাৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম। এজন ৰজাৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম হৈছে দুষ্টক দমন কৰাটো। আমি কেতিয়াও আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰক ক্ষতি কৰা নাছিলো, কিন্তু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰই আমাৰ ক্ষতি কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'বই লাগিব। যদি ইয়াৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই আখৰিক কাণ্ড কৰে, হত্যালীলা চলায়, তেনেহলে আমি ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব। এতিয়া দেশৰ জনতাক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰজা আগবাঢ়ি আহিবই লাগিব বুলি আহ্বান জনাইছে, মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, দুষ্টক দমন কৰিবৰ বাবে কৃষ্ণই অৰ্জুনক হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'বলৈ কৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক অস্ত্ৰ তুলি ল'বলৈ কৈছিল দুষ্টক দমন কৰিবৰ বাবে। একেধৰণে আমাৰ দেশৰ ৰজাও এতিয়া আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। জনতাক ৰক্ষাৰ বাবে একশ্যন ল'বই লাগিব, এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰএছএছ প্রধান মোহন ভাগवत। এই মুহূর্তত মোহন ভাগवतर मंतव्य आमार लगत आछे, की कइसे शुनुआ होक। भाष्य स्वामी जी ने एक किया है और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेंगे। उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा है। दुनिया को उनको बहुत सिखाना है और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है।
तो भेदभाव कहां से आया? अभी भी चलता है, क्यों चलता है? हमारे स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण देकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे, और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए किया, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसलिए बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हम पर दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल गए, उनको आना पड़ेगा फिर से। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है हमारे यहां। जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है, इसका भाष्य स्वामी जी ने एक किया है, और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेंगे। उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा है। दुनिया को उनको बहुत सिखाना है, और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया? अभी भी चलता है, क्यों चलता है? हमारे स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण देकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे, और इतने बगड़े रहेंगे,
कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए किया, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसलिए बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल गए, उनको आना पड़ेगा फिर से। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है हमारे यहां। जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है, इसका भाष्य स्वामी जी ने एक किया है, और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेगा।